اسٹار دیکھنے والوں کو میری طرف سے اسلام. ویورز کیسے ہیں آپ؟ خداوند آپ سب کو برکت دے. میرے عزیزوں، جیسا کہ آج ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور یقیناً ماؤں کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے اور مائیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. میں شکر گزار ہوں کہ خداوند نے ہماری ماؤں کو ہماری زندگی میں رکھا ہے اور ماؤں کی قدر و قیمت جو ہے وہ اس وقت زیادہ محسوس ہوتی ہے جب وہ ہماری زندگی سے چلی جاتی ہیں. اور یقیناً یہ دن کیوں نہ سیلیبریٹ کیا جاتا، کیونکہ مائیں جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہیں. اسی لیے یہ ایک دن مقرر کیا گیا ہے تاکہ ہم ماؤں کو یاد دلا سکیں کہ ہم آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں. میرے عزیزوں، ہمارے ساتھ پروگرام میں جو ہیں وہ مہمان موجود ہیں اور میری بہنیں خداوند کی خادمائیں جو ہیں وہ آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں اور ہم سب مل کر آج ماؤں کے حوالے سے بات کریں گے، ان کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے. اور میں اپنے تمام تر مہمانوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. میرے ساتھ خداوند کی بہت اچھی خادمہ مسز رخسانہ ناصر ہے. خداوند ان کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے. اس کے بعد میں میرے ساتھ خداوند کی خادمہ مسز نگہت ہیں. خداوند مبشرہ صاحبہ کو اپنے جلال کے لیے جگہ بہ جگہ استعمال کرتا ہے. اس سے نیکسٹ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ خداوند کی بہت ہی اچھی خادمہ مبشرہ شمیم شکیل ہیں. خداوند اپنی بیٹی کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے. میرے عزیزوں، اس سے نیکسٹ جو خداوند کی خادمہ ہیں وہ مسز گلشن ہیں اور خداوند وومن منسٹری میں میری بہن کو جو ہے وہ کثرت سے استعمال کر رہا ہے. اس سے آگے جو خداوند کی خادمہ ہے میری بہت ہی پیاری خداوند کی خادمہ مسز شازیہ ہیں اور خداوند اپنی بیٹی کو وومن منسٹری میں اور اس کے علاوہ جگہ بہ جگہ پورے پاکستان میں استعمال کر رہا ہے. اور لاسٹ میں میری بہن جو ہیں جن کا میں آپ کو تعارف کروانے جا رہی ہوں وہ خداوند کی بہت ہی اچھی خادمہ ہیں اور چرچ میں بہت ہی اچھی خدمت کو سر انجام دے رہی ہیں. ان کا نام بہن سلینا ہے اور یہ مبشرانہ خدمت جو ہے وہ چرچ میں انجام دے رہی ہیں. میری بہنوں، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. اور بہن رخسانہ جو ہیں خداوند ان کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے. اور میری بہن، آپ جو ہیں وہ آپ کی کیا رائے ہے، ایک ماں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب دیکھنے والوں کو سلام. جیسا کہ آج ماؤں کا عالمی دن ہے تو میرے خیال میں ماؤں کا عالمی دن ایک دن نہیں ہونا چاہیے، ماؤں کا عالمی دن ہر روز ہونا چاہیے. کیونکہ مائیں ایک دن اپنے بچوں کے لیے قربانی نہیں دیتی، مائیں تو ہر وقت ہر روز اپنے بچوں کے لیے قربانی دیتی ہیں. اور جب ماں ایک بچے کو پیدا کرتی ہے تو وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو کر اپنے بچے کو جنم دیتی ہے. تو ماں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بچے کو جنم دے کے زندہ رہے یا نہ رہے. اور یہ ہے کہ ماں کی ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ اہمیت ہے. جیسا کہ پاک کلام میں خداوند کے 10 احکام میں خداوند نے اپنے بعد ماں باپ کی عزت کرنے کا حکم کیا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر تو تیری عمر دراز ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے اپنی ماں باپ کی عزت کرنا. اور ماں ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ وہ ہمیں بہت ساری پریشانیاں اٹھا کر، مشکل مصیبتیں اٹھا کر ہمیں فرمان چڑھاتی ہے. تو اسی طرح جیسے ہم نے دیکھا کہ ہماری ماں نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. جب ہماری ماں نے ہمارے لیے قربانیاں دی، ہمیں جوان کیا، ہماری شادیاں کی، تو ہم اس لائق بنے کہ ہم ماں باپ ہیں. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں تاکہ ہمارے بچے بھی کل اس لائق بنے کہ وہ ہمارا نام لے سکے. جی بالکل. جی، جیسا کہ خداوند کے مقدس پاک کلام میں بھی درج ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر تو میں تیری عمر کو دراز کروں گا. اور عمر کی درازی کا جو ہے وہ وعدہ خداوند نے جو ہے وہ کلام مقدس میں ہمارے ساتھ کیا ہے. جس طرح ہماری ماں نے ہماری تربیت کی ہے اور ہم خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم بھی اپنے
बच्चों की जो है वो बेहतरीन तालीम और तरबियत का ख्याल रखें। जी बहन निगत, आप बताइए कि आपकी क्या राय है एक माँ के हवाले से? मेरी तरफ से सबको सलाम। जी इस्लाम। माँ की अहमियत बहुत ज़्यादा है और हमें हर जगह पे जो है इसकी अहमियत दिखाई देती है, किताबों में भी हम लोग पढ़ते हैं। जी बिल्कुल। और हर जगह पे भी जो भी होता है कि माँ की अहमियत जो है जी। वो की जाती है, माँ की इज्जत बताई जाती है। लेकिन ये है कि आजकल के जो बच्चों में है ना, ये चीज़ कम हो गई है। जी पहले जो थे वो माँ बाप की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, जी लेकिन आजकल बच्चे दिन पे तो उसकी इज्जत करेंगे, उस दिन को जी। तो बहुत खुशी से मनाते हैं, जी लेकिन बाकी जो होता है वो भूल जाते हैं। जी, नाफरमानी का शिकार हो जाते हैं। जी तो चाहिए तो यही है कि माँ बाप की इज्जत जो है वो रोज पे जी रोज बिल्कुल। होनी चाहिए, कभी भी उस चीज से, उस हुक्म से वे पीछे नहीं होते। जी जी बिल्कुल। तो हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया जी। है, आज हम भी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जी तो मैं यही चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं वो उसका अजर जो है वो हम सबको मिलना जी। चाहिए, अपने माँ बाप की इज्जत जो है वो कभी भूलनी नहीं चाहिए। जी जी बिल्कुल। हमें कलाम मुकद्दस में दर्ज है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे जो है वो नहीं मुड़ेगा। तो जरूर है कि हम अपने बच्चों की जो तरबियत है वो अच्छे तरीके से करें। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि बच्चा जो है वो हमारा कहना नहीं सुन रहा। पाक कलाम में ये दर्ज है कि लड़के की जो है वो उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। उसमें यही नहीं लिखा कि लड़का अगर नहीं चाह रहा या बच्चा अगर नहीं चाह रहा, बच्चे की अगर मर्जी नहीं है तो फिर हम उसकी तालीम और तरबियत को छोड़ दें। बच्चे की चाहे मर्जी हो या ना हो, हमें उसकी किसी ना किसी तरीके से तरबियत को जारी रखना है। उसके लिए चाहे हमें प्यार से हम उसको गाइड करें या सख्ती से गाइड करें, लेकिन हमें उसको खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक जरूर गाइड करना चाहिए। आगे मेरे साथ मेरी खुदावंद की बहुत अच्छी खादमा मुबशरा शमीम शकील है। बहन आपकी क्या राय है एक माँ के हवाले से? मसीह यीशु में आप सबको सलाम। जी बाजी, इस माँ के हवाले से तो माँ का दर्जा जो है वो कोई भी दुनिया में किसी का नहीं है। जी बिल्कुल। जो माँ है हमारी, हमें बहुत अच्छी तरबियत देती है। जी बिल्कुल। जब हम छोटे थे तो हमारी माँ ने हमारे लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। जी जी। हमें संडे स्कूल भेजकर हमें ये आज हम जो यहाँ बैठे हुए हैं वो अपनी माँ की वजह से। जी बिल्कुल। क्योंकि हमारी माँ ने हमारे लिए बहुत सारे दुख उठाए। जी बिल्कुल। बहुत सारी कुर्बानियाँ देकर हमें आज यहाँ तक पहुँचाया। जी बिल्कुल। तो वाकई माँ जो है वो हमें बहुत सारे चीज़ों से, बहुत सारी बातों से समझाती, सिखाती कि आज हमने आज जो है वो खुदा के कलाम के लिए हमें उन्होंने तैयार किया। जी। तो माँ की अहमियत जो है वो कोई भी जी बिल्कुल कोई और पूरा नहीं कर सकता, और कोई नहीं दे सकता सिवा माँ के। क्योंकि माँ ही एक हस्ती है जो दुनिया में हर एक बात को अच्छे बुरे से मना कर सकती है। जी बिल्कुल। यकीनन माँ और बाप की जो अहमियत है वो हमारी जिंदगियों में जो है वो कोई और पूरा नहीं कर सकता। नेक्स्ट मैं अपनी बहन गुलशन की तरफ आती हूँ। मेरी बहन जो है वो बहुत अच्छी खुदावन की खादमा है। जी बहन, आपकी क्या राय है एक माँ के बारे में? शानस्टार देखने वाले तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। और जो माँ के अहमियत के हवाले से बात है तो इसका तो जो है हम वो कर्ज दे नहीं सकते अपनी माँ का। जी बिल्कुल। क्योंकि वो हमें अपना खून और गोश्त दे के हमें जो है परवान चढ़ाती है, फिर इतनी तकलीफ से हमें इस दुनिया में लाती है। जी बिल्कुल। फिर हमें पाल पोस के बड़ा करती है और दिन रात जो है वो घरदारी भी देखनी होती है, हस्बैंड को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है। जी बिल्कुल। सारे काम जो है वो एक माँ जो है वो करती है। जी बिल्कुल। और तंग नहीं आती अपने बच्चों से, जी बिल्कुल। परेशान नहीं होती। जो भी जिस टाइम भी बच्चा बोले, आधी रात को भी बोले कि माँ मुझे ये चाहिए या मुझे ये तकलीफ है, तो वो अपना आराम जो है वो बर्बाद करके अपने बच्चे के बारे में सोचती जी, कभी थकती नहीं है माँ। थकती नहीं है। और मुझे याद है अच्छी तरह के तकरीबन मैं 6 महीने जब बीमार हो गई थी, मुझे टाइफाइड हो गया था, तो मुझे अभी भी याद है कि मेरी माँ ने दिन रात एक करके जो है
उसको कोई जहाँ भी बोलता था कि इसको ले जाओ या वहां पे ठीक हो जाएगी, मेरी माँ हर जगह मुझे लेकर भागी है। और पूरी रात जो है उल्टियों की वजह से मेरी तबीयत खराब, तो मेरी माँ जी। जो है वो बिस्तर जो है बदलती रहती थी, कभी मेरे अब्बू के पास लेटा दिया चादर चेंज करके, कभी अपने जी। पास ले आई। मुझे वो अपनी माँ की जो खिदमत है आज भी याद है, और मेरी यही कोशिश है कि जहाँ तक हो सके खुदा मेरी माँ को सलामत और अपने पैरों पे खड़ा रखे, और ये दिन ना आए कि हमें जो है उसकी खिदमत करनी पड़े। लेकिन अगर कभी ऐसा मौका खुदा ने दिया तो माँ की जो खिदमत जी। है वो हम पर फर्ज है, क्योंकि अगर एक माँ हमारे लिए कर सकती है तो हमें भी चाहिए कि जो अपनी बाकी जिंदगी है जो हमारी माँ नहीं कर सकती अपने लिए, वो उसके लिए करना चाहिए। जी, मेरी प्यारी बहन ने बहुत ही खूबसूरत शेर जो है वो अपनी माँ के लिए लिखा है। तो सिस्टर, मैं ज़रूर आपसे कहूँगी कि आप प्लीज़ हमें वो शेर सुनाइए। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, माँ से बढ़कर कोई नाम क्या जी, होगा, वाह। इस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। ज़बरदस्त। थैंक यू। ओके, खुदावन सिस्टर आपको बहुत ज्यादा बरकत दे और अपने जलाल के लिए और ज्यादा इस्तेमाल करे। इसके बाद मेरे साथ खुदावन की बहुत ही प्यारी खादमा मिसेस शाजिया मौजूद हैं और वो बयान करेंगी कि उनकी जिंदगी में उनकी माँ का किरदार कैसा रहा है। जी, मेरी तरफ से सब देखने वालों को सलाम। और माँ का किरदार जो है वो बयान से बाहर है। जी जिस तरह बिल्कुल। खुदा हमसे मोहब्बत करता है, खुदा ने हमें खुदा के बाद माँ को दर्जा दिया गया है कि हम अपने माँ बाप की किस तरह से जो है उनसे प्यार कर सकते हैं, उनकी अहमियत को जान सकते हैं। ये हमें इस तरह से मिलता है कि हम जब अब माएँ हैं तो हम अपने बच्चों की किस तरह से तरबियत करती हैं। जब हम अपने बच्चों को देखती हैं, ना हम दिन देखती हैं ना रात देखती हैं, तो अपने बच्चों के तरबियत में, उनके कामों में, उनकी फिक्रों में लगी रहती हैं। तो इसी तरह हमारी माओ ने भी हमारे लिए ये किया है। तो जी, बिल्कुल। इसलिए हमें अपने माँ बाप की जो अहमियत है उसका एहसास आज जी बिल्कुल। बहुत ज्यादा होता है कि हम जब अपने बच्चों को देख रहे हैं, उनके लिए दिन रात मेहनत करती हैं, उनकी तरबियत के लिए, उनकी हर एक चीज के लिए फिक्रमंद है। इसी तरह हमारे जो माएँ हैं उन्होंने हमारे लिए फिक्र की है, और इसलिए माँ की जो मोहब्बत है वो मैं समझती हूँ वो बयान से बाहर है। जी खुदा के बाद जो है वो माँ की मोहब्बत की जो अहमियत है वो हमारी माओ की है, जो हमसे बेहद प्यार करती हैं। खुदा के बाद जब खुदा हमारे दुख को जैसे देखता है, हमारी तकलीफ को देखता है, इसी तरह हमारी माएँ जो हैं हमारे दुख को, हमारी तकलीफों को देख लेती हैं और वो हमारी तकलीफ में हमारे साथ खड़ी रहती हैं, दुख में हमारे साथ खड़ी। जी बिल्कुल, माँ की ममता जो है वो बहुत ही एक औरत के अंदर होती है। और कोई भी औरत जो है, जब हम देखते हैं कि जब वो किसी बच्चे को अडॉप्ट भी कर लेती है तो वो उस बच्चे का इस तरह ख्याल रखती है कि जिस तरह वो अपने जन्म दिए हुए बच्चे का ख्याल रखती है। क्योंकि खुदा ने एक औरत के अंदर, एक माँ के अंदर जो है वो ममता भरी हुई होती है, और वो ना सर्दी देखती है ना गर्मी देखती है, और वो अपने बच्चे का जो है वो हमेशा ख्याल रखती है। आगे मेरे साथ खुदावन की बहुत अच्छी खादमा जो है वो मौजूद है। सिस्टर सलीना, आपकी क्या राय है? जी मसीह में आप सबको सलाम। जी मेरी राय ये है कि आजकल जैसे कि सब बहनों ने बताया कि माँ की अहमियत जो है वो बहुत ज्यादा है, और ये माँ की अहमियत हम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि ये हमें मालूम है कि हम अपनी माँ को किस तरह से प्यार करते थे और हमारी माँ हमें किस तरह प्यार करती थी। जिस तरह हमारी माँ ने हमें तरबियत दी, हम भी चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को तरबियत दें। जिस तरह आज हम इस जगह पर हैं, आज हम खुदावन की हजूरी में हैं, आज हम खुदावन का नाम ले रहे हैं, तो ये सारी हमारी माँ की तरबियत है। हमारी माँ ने जो हमें सिखाया, हम भी अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि खुदावन के भी ताबे रहो, अपने माँ बाप के भी ताबे रहो, अपने माँ बाप की भी वफादारी करो और खुदावन की भी वफादारी करो। जितना हम खुदावन में हम चलते हैं, और हम चाहते हैं कि हम भी अपने बच्चों को इसी तरह खुदावन में उन्हें चलाना सिखाएं, खुदावन के कलाम की बातें करें, खुदावन के कलाम को जाहिर करें और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हों। क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी राह पर लेकर जाएं।
जी बिल्कुल। और खास करके आजकल की बेटियां जो बहुत ज्यादा आजाद हैं और जो माएँ उनकी तरबियत नहीं सही कर पाती, उनको पहनावा, उनकी चाल चलन, उठना बैठना, बोलना चालना, ये हम अपनी बच्चियों को नहीं सिखा सकते। और यही हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां जो हैं वो खुदावंद में मसरूर रहें और खुदावंद के नाम को जला देते हैं। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। आजकल हम देखते हैं कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो तालीम और तरबियत की वजह से जो है वो बेरवा रवी का शिकार हो चुकी है, और हम अपने यंगस्टर्स को देखते हैं कि हमारे जो नौजवान जो बेटे हैं वो जो है वो नशे के शिकार हो चुके हैं, शराब नोशी का शिकार हो चुके हैं, और जो हमारे बच्चे हैं वो काफी बिगड़ चुके हैं। इसी तरह हम अपनी बेटियों को देखते हैं कि हमारी जो बेटियां हैं जो है वो काफी हमारे हाथों से जा रही हैं, निकल रही हैं, और वो बेरा रवी का शिकार हो रही हैं। तो खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक हमें अपने बच्चों की जो है वो बेहतरीन तालीम और तरबियत करनी है, और उनकी तालीम और तरबियत का हमें ख्याल रखना है। और जैसा कि मैंने पहले भी बयान किया कि खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम में दर्ज है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, तो वो क्या होगा, बूढ़ा भी हो जाएगा तो वो उस राह से नहीं मुड़ेगा। तो हमें खुदावन का मुकद्दस पाक कलाम जो है वो हमें इसीलिए दिया गया है कि जब हम खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम को उनके सामने तलावत करेंगे, खुदावन के जो बातें हैं उनके सामने रखेंगे, उनकी तालीम और तरबियत जो है वो खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक करेंगे, तो यकीनन जो हमारी नौजवान नस्ल है वो यकीनन कामयाब होगी। हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, जो हमारी कम्युनिटी के बच्चे हैं, जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चे हैं, वो ज्यादातर कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि उसमें तालीम और तरबियत की जो है वो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। लेकिन हमें, चाहे उनकी मर्जी हो, चाहे हमें छड़ी का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे हमें सख्ती करनी पड़े, नरमी करनी पड़े, लेकिन हमें अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का खास तौर पर क्या रखना है, ख्याल रखना है। अगर हम खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ें यसाया 66 बाब और उसकी 13वीं आयत में पढ़ें तो लिखा है, जिस तरह माँ अपने बेटे को दिलासा देती है उसी तरह मैं तुमको दिलासा दूंगा। और खुदावन की जो मोहब्बत है पाक कलाम में वो एक लाजवाल मोहब्बत है, और खुदावन ने अपनी मोहब्बत को माँ की मोहब्बत के साथ तशबीह जो है वो दी है, और तशबीह उसी चीज के साथ दी जाती है जिसकी कोई अहमियत हो। और माँ की जो ममता है, माँ की जो मोहब्बत है वो एक लाजवाल मोहब्बत है। अगर आसमान पर हमारा खुदा हमारी जो है वो हमें प्रोवाइड करता है और हमारी जरूरतों का ख्याल रखता है, तो उसे जमीन पर हमारे लिए माँ जैसा अनमोल तोहफा रखा है। और माँ जो है वो हमारा, जैसे ही हम पैदा होते हैं, हमारे पैदा होने से पहले ही उसको हमारी जरूरतों का, हमारी चीजों का ख्याल होता है, और वो हमारे लिए बहुत सी चीजों को जो है वो अरेंज करती है, ताकि जब बच्चा इस दुनिया में आए तो उसके लिए तमाम तर चीजें जो हैं वो पहले से तैयार हों। इसी तरह जो हमें खुदावन हमें भी औलाद देता है, तो हमारे अंदर जो खुदावन ने ममता रखी है हमें उसको जरूर बाहर निकालना चाहिए। अपने फीलिंग्स को, जो ममता वाली फीलिंग्स है, उनको जरूर बाहर निकालना चाहिए। और सारे कामों से ज्यादा हमें जो है वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर गौर देना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो आने वाले वक्तों में खुदावन के जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल हो पाए। खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम में दर्ज है कि जो औलाद है वो खुदावन की तरफ से मिरास है और खुदावन की तरफ से तोहफा है, और जो तोहफा होता है उसको हम बहुत संभाल कर रखते हैं। अगर किसी को गिफ्ट दिया जाता है वो गिफ्ट पाकर बहुत खुश होता है, और अगर अच्छा गिफ्ट दिया जाए तो उसको बहुत संभाल कर रखा जाता है और उसको पॉलिश किया जाता है, उसकी सफाई सुथराई की जाती है। इसी तरह जब खुदावन हमें औलाद देता है और औलाद जैसे नेमत देता है, तो फिर हमें उस तोहफे को क्या करना है, संभाल कर रखना है, उसकी सफाई सुथराई करनी है और उस पर मेहनत करनी है। खुदावन के पाक कलाम के जरिए से हमें उसकी तालीम और तरबियत करनी है, ताकि वो खुदावन के साथ
बेहतर तौर पर चल सके और दुनिया में जो है वो कामयाब हो सके। और हमें अपने बच्चों को तैयार करना है ताकि वो खुदावन यीशु के अच्छे गवाह बन सके और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। अगर मेरी कोई और बहन जो है वो अपनी माँ के हवाले से कोई बात करना चाहती हैं तो आप जरूर कर सकती हैं। जी, माँ के हवाले से बात करना चाहती हूँ कि जैसे कि आजकल के दौर में आपको पता है कि कैसा ये ज़माना चल रहा है। मेरी जितनी तमाम बहनें हैं उनसे ये दरख्वास्त है कि मेहरबानी से अपनी बेटियों को खासकर अच्छी तरबियत दें, खुदा की राह पर चलाएं और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल मिले। Yes, praise the Lord। जी बिल्कुल, हमें अपने बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत का ख्याल रखना है और खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक उनकी जिंदगियों को गुजारना है। और अक्सर हम देखते हैं कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को संडे स्कूल में नहीं भेजते और हमें बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत माँ बाप होते हुए घर पर भी करनी है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जब वो हमारी नाफरमानी करते हैं तो फिर हमें बहुत दुख होता है और ये उन्हीं बातों का नतीजा होता है कि हमने अपने बच्चों की बेहतरीन जो है वो तालीम और तरबियत का ख्याल नहीं रखा होता और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में उनको हमने बताया नहीं होता। और आज जो माओं का जो आलमी दिन है उसमें मेरा आप तमाम तर नाजरीन से और अपने आए हुए मेहमानों से यही मेरा पैगाम है कि आप अपने बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत का ख्याल रखें और अपनी माँ से सिर्फ आज के दिन ही नहीं बल्कि हमेशा मोहब्बत और प्यार करते रहें। ना सिर्फ माँ की बल्कि अपने बाप की भी दिलो जान से मोहब्बत और प्यार करें और उनकी इज्जत करें। आमीन। मेरे अजीजों, आए हम मदर डे के इस खुसूसी दिन में अपनी तमाम तर माओं के लिए और अपने बच्चों के लिए दुआ करें ताकि खुदावन माओं को और बच्चों को उनमें ऐसी बॉन्डिंग पैदा करे कि वो एक दूसरे की बात को समझ सकें और खुदावन की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार सकें। कदूस कदूस अजीम खुदा, तेरी तारीफ हो, तेरी ताजीम हो, तेरी सताइश हो। आज के दिन के लिए खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। आए खुदा हम ना सिर्फ आज के दिन बल्कि आए खुदा हर रोज अपनी माओ की इज्जत कर सके, अपने बाप की इज्जत कर सके और आए खुदा हम जितनी भी माएँ हैं हम अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश कर सके, बेहतरीन तरबियत कर सके ताकि हमारे बच्चे खुदा तेरे मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजार सके। हमारे बच्चों की परवरिश तेरे मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक हो। खुदा बाप, मेरा ईमान है तो जिंदा खुदावन ने मेरी दुआ को सुना है, कबूल किया है। खुदावन तेरा बेइंतहा शुक्र हो। आमीन। आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी मदर्स डे।